Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord's word says to us प्रभु का वचन हमसे कहता है that when we seek the Lord, जब हम प्रभु की खोज में रहते His हैं voice comes before His throne in the morning. और हमारी आवाज उसके सामने सिंहासन में सुबह सुबह पहुंचती There was है। a morning offering that the priest is to offer. और एक सुबह की भेंट है जो याजक चढ़ाता था This is a morning offering. और ये सुबह की भेंट समान Come है on, the Lord is going to answer you. और प्रभु यकीनन आपको आशीर्वादित Today's word करेगा। is going to bless you. आज का वचन आपको आशीर्वादित करेगा। Yes, let's go to Genesis 26 and verse 22. आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 26-22 And it says, and he moved from there and dug another well. और वहाँ पे लिखा है तब उसने वहाँ से निकलकर और एक कुआं खुदवाया। Good news, and they did not quarrel over it. और अच्छी खबर ये है कि उसको लेकर वहाँ पे झगड़ा न हुआ। So he called its name Rehoboth. और इसलिए उसने उसका नाम रेहोबोत रखा। Because he said, for now the Lord has made room for us and we shall be fruitful in the land. क्योंकि उसने कहा अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे और फलेंगे। Isaac had faced jealousy. और इसहाक ने जलन का सामना Because किया। of his prosperity, people got jealous. उसकी तरक्की की वजह से लोग जलने लगे। He dug the old wells, so there was contention at Isaac. और जब पुराने कुएं उसने खोदे तो फिर वहाँ पे झगड़े हुए जिसका नाम उसने एसेक रखा। There was accusation against him at Sitna. और सिटना में उसके विरोध में आरोप लगाया Yet he गया। did not allow any of those seasons to stop him. पर फिर भी इस सारे बुरे समय को उसने खुद को रोकने नहीं दिया। He moved on. वो आगे बढ़ता He चला। dug again. उसने और एक कुआं खोदा। And at this time, और इस बार the Lord did something for him. परमेश्वर ने कुछ खास उसके लिए You किया। know, the word of God says, वचन कहता है we will reap in due time और सही समय में हम कटाई करेंगे if we don't give up. अगर हम हार न माने तो। Don't give up, church. कभी हार मत मानिए। Don't give up. कभी हार मत God मानिए। is bringing you into your Rehoboth. और परमेश्वर आपको आपके रेहोबोत में लेकर चल रहा What है। is the meaning of और Rehoboth? रेहोबोत का मतलब क्या है? Maybe one day you will have a house called Rehoboth. और हो सकता Hey! है एक दिन आपको एक घर मिले जिसका नाम There'll रेहोबोत be a होगा plaque outside your house called Rehoboth. और आपके घर के बाहर एक प्लाक होगा जिसपे लिखा रहेगा रेहोबोत। Somebody is already saying amen. और कोई तो आमेन कह रहा है। Hallelujah. Hallelujah. It means wide spaces. और इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी जगह और कमरे। It means room enough. इसका मतलब है कि इतनी जगह की बहुत सारे कमरे It उसमें हो means सकते a हैं। spacious place. इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ी और चौड़ी जगह। This is a beautiful truth. ये बहुत ही सुंदर सत्य है That God will give you the strength to endure opposition. कि परमेश्वर आपको इतनी ताकत देगा कि आप विरोध का सामना कर सकें। And when you overcome that, और जब आप उस पर जय पाएंगे He will bring you into a place where you can breathe freely. तो परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर लेकर आएगा जहाँ पे आप चैन की सांस लेंगे। I like that, chain ki saas. Hallelujah. Hallelujah. You will breathe freely. आप चैन की सांस लेंगे। The first key to Rehoboth is found in the simple words over there. Is look at the scripture. It says he moved from there. और वचन कहता है कि वो वहाँ से आगे बढ़ा। He moved from वो there. वहाँ से निकल के आगे बढ़ा। Isaac did not remain in the place of jealousy. और इसहाक जलन के स्थान पे नहीं रुका He रहा। did not remain in the place of quarreling, Esek. और झगड़ा या एसेक की जगह पे वो नहीं रुक गया। He did not remain at the place of accusation, Sitna. और सितना या आरोप की जगह पे इसहाक रुक नहीं गया। Yes, he moved on. वो आगे बढ़ता गया। What do you mean moved on, और Pastor? आगे बढ़ने का मतलब क्या है? Sometimes we are physically moving, और कभी कभार शरीर में तो हम आगे बढ़ but रहे हैं still we are mentally in that place. पर मानसिक तौर से हम पीछे अटके हुए You know, हैं। Pastor Michael, आपको पता है पास्टर they माइकल were jealous of me. और वो मुझसे जलते थे Pastor, this fellow quarreled with और me. पास्टर इस व्यक्ति ने मेरे साथ झगड़ा किया And that fellow, I'll never forgive him. और उस व्यक्ति को तो मैं कभी माफ नहीं God is करूंगा। asking to leave those places. परमेश्वर कह रहा है कि उन सारे स्थानों को छोड़ के God आगे is निकल। asking to leave those परमेश्वर places. कह रहा है उन सारी चीजों को छोड़ के आगे What निकलो। happened 10 years? You're still there. जो 10 साल पहले हो गया है आप वहीं पे अटके हुए हैं। Mentally, you're still there. आपका मन तो वहीं पे लगा हुआ है। Physically, you're moved out. शरीर में आप 10 साल आगे बढ़ You गए। keep revisiting that offense. आप बार बार वो सारी बातों को मन में You दोहराते keep हैं। rehearsing that hurt. वो सारी नाराजगी वाली बातें आप मन में You बार बार keep सोचते हैं। reliving that injustice. आप बार बार जो आपके साथ अन्याय हुआ उसके बारे में सोचते रहते मेरे हैं। सास ने ये किया, मेरे सास ने वो किया, अरे सास तो मर के बेचारी ऊपर गा रही है, Your mother-in-law is dead and gone and you're still thinking about अरे her. ऊपर गा रही है बेचारी, उसकी गाने को तंग मत कर तू। Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं? Don't revisit those जो places. बातें हो गई है बार बार Your वहाँ पे मत future जाइए। cannot fully open when your heart is tied in yesterday's pain. अगर कल के दर्द में आपका मन गुंथा हुआ है तो आपका भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता। Wow, powerful. This is from the Holy Spirit. ये बात पवित्र आत्मा Your से है। future cannot fully open when your heart
remains tied to yesterday's pain. अगर आपका मन गुजरे कल के दर्द में उलझा हुआ है तो आपका भविष्य आपके लिए खुल नहीं सकता। Pastor, that does it mean that I should just forget it? तो आप कहेंगे पास्टर इसका मतलब ये है कि वो सारी बातें मैं भूल जाऊं? No, we are not नहीं। telling you to forget मैं it. नहीं कह रहा हूँ कि आप भूल जाइए। It means you should pretend that nothing has happened. तो फिर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ दिखाएं कि कुछ हुआ ही नहीं था? Now, here's what you should do. आपको ये करना है। It means refusing to let what happened control you from where God is taking you. इसका मतलब है कि जो कुछ हो गया है आप उसे अनुमति मत दीजिए कि वो आप पे इतना Yes. हावी हो जाए कि आप आगे ना बढ़े जो प्रभु ने आपके लिए तैयार It should रखा है। not control you in such a manner that it can stop you from where God wants to take you. ये सारी बातें आपको अपने काबू में इतना न ले ले कि आप आगे न बढ़ पाए उन बातों में जो प्रभु ने आपके लिए तैयार की है। Rehoboth रेहोबोत teaches us God is able to make room for you, for your family members, your loved ones. और रेहोबोत हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, प्रिय लोगों के लिए कमरा तैयार करता है। The Rehoboth means that God can take you from resistance to a place of favor, a place of blessing. और रेहोबोत का मतलब है कि विरोध के स्थान से परमेश्वर हमें एक आशीष और अनुग्रह पाने के स्थान में ले जा सकता है। You don't need to push those doors. आपको उन दरवाजों को ठोकना नहीं है। God will open those परमेश्वर वो doors. दरवाजे आपके लिए खोलेगा। When God opens the door, जब परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है, no man can shut कोई it. इंसान की हिम्मत नहीं No कि वो दरवाजे को opposition बंद can करे। push you out. कोई भी विरोध करके आपको बाहर नहीं निकाल सकता। Somebody say hallelujah. और कोई तो कहे Lift your hallelujah. hands and say the Lord has made room for अपने me. हाथ उठाकर कहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए जगह तैयार He की did है। not say the Lord has made a room for me, he says the Lord has made a room for us and we shall be fruitful. और इसहाक कहता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं पर हमारे लिए जगह तैयार की है और So- हम वहाँ पे फूलेंगे So it's फलेंगे। not only about you. और बात सिर्फ आपके लिए नहीं When है। God blesses you, जब प्रभु आपको He आशीर्वादित wants करता your है, family, your team, your church, and your future generations that will come out of you to be blessed and strengthened through your life. परमेश्वर नहीं चाहता है कि आशीष सिर्फ आप तक सीमित हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपके आने वाली पीढ़ी आशीर्वादित हो। So Rehoboth is not only a testimony for what God has done for you, it becomes a place of blessing for others. Made room for us, we shall be fruitful. So it's not about you, it's about everyone around. आशीष सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है रेहोबोत सिर्फ आपकी गवाही नहीं होगी पर बहुत से लोगों के लिए आशीष और गवाही का कारण बनेगा। I prophesy मैं भविष्यवाणी करता this हूँ 8th month, और ये 8वां महीना the Lord will bring you into your place of और Rehoboth, परमेश्वर आपको आपके रेहोबोत के स्थान पे into पहुंचाएगा, your place of rest, आपके विश्राम के स्थान into में, your place of fruitfulness and आपके purpose. फूलने और फलने के स्थान में लेकर आएगा। Pastor, is it possible? पास्टर क्या ये मुमकिन है? Yes. हाँ मुमकिन है। God is faithful. परमेश्वर ईमानदार है, You know what विश्वास योग्य Jesus है। said? आपको पता है यीशु ने Just क्या come to कहा? me. कि आओ मेरे पास, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, Yes. मैं तुम्हें शांति Today, दूंगा। if your life is far away from the Lord, और आज अगर आपका जीवन प्रभु से why बहुत don't you दूर come है, to the Lord? आप क्यों प्रभु के पास लौट And कर say, नहीं "Lord, आते?" कहिए प्रभु enough. बस I cannot take this as sec. I cannot take this sit now. I want to come to you. Bring me into my इस Rehoboth. ऐसे को और सितना को मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ। मुझे अब अपने रेहोबोत में ले Lift जाइए। your hands and pray. अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना Say, कीजिए। Father, in the name of Jesus, कहिए, अब्बा पिता यीशु के नाम I में receive the grace मैं अनुग्रह प्राप्त करता to हूँ leave every place of strife, pain, and accusation. कि हर झगड़े, दर्द और आरोप की जगह को मैं छोड़कर आगे I निकलूं। leave those limitations मैं behind. उन सारी मर्यादाओं को पीछे छोड़ता हूँ। I will not remain bound to yesterday's battle. मैं कल के युद्ध में नहीं उलझा रहूंगा। Lift your hands and pray right अपने now. हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए। Yes, anything tying you to your past that is not good, let it be broken right now. और हर वो चीज जो आपके बुरे गुजरे कल से आपको जोड़ के रख रही है वो खुल जाए यीशु के नाम में। Any chains that are tying you to your past, और हर वो जंजीर जो आपके गुजरे कल से आपको बांध के रख रही yes, है let it be broken in the name वो of सारी Jesus. जंजीरें टूट जाए Let यीशु it के be नाम में। shattered in the name वो of सारी Jesus. जंजीरें हट जाए यीशु के नाम में। Somebody bless the और Lord. कोई तो प्रभु को धन्य Yes, कहे। begin to pray right now. प्रार्थना कीजिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Say, oh Lord, कहिए, हे प्रभु lead me into my Rehoboth. और मेरे रेहोबोत में आप मुझे ले चलिए। Lord, say, Lord, lead me into my कहिए, प्रभु Rehoboth. मेरे रेहोबोत में मुझे ले Say, चलिए। Father, make room for me and my कहिए, family. पिता मेरे और मेरे परिवार के लिए जगह तैयार Let कीजिए। divine doors open. मेरे लिए दैविक दरवाजे Divine खुले, opportunities open. दैविक मौके खुल जाए, Relationships. दैविक रिश्ते Provision appointed for my fruitfulness. और ऐसे प्रबंध जो मेरे फूलने और फलने के लिए रखे गए हैं खुल जाए, Open. खुल जाए, Open by your power. आपके सामर्थ्य से खुल जाए यीशु Lord, के what नाम you में। open, no man can shut. प्रभु जो आप खोलते हैं कोई Pray. इंसान बंद नहीं कर Say, सकता। Lord, open. कहिए, प्रभु खोलिए Open those उन doors दरवाजों को for खोलिए me and प्रभु for my family. मेरे और मेरे
परिवार for के लिए my प्रभु, family members, मेरे परिवार के लोगों in के the name लिए, of Jesus, यीशु के नाम in में, this season, इस समय में, hallelujah, Hallelujah. say we shall be fruitful in the land, और कहिए कि हम इस देश में फूलेंगे और we shall be फलेंगे, a blessing in the land, और मैं हम इस देश में फूलेंगे और in फलेंगे the name of Jesus. यीशु के नाम Begin to में। pray. Masaka सभी tole लोग प्रार्थना brazeke कीजिए। tala brazaka शांताराबाजी tala के बीराबांताराबा bazeke. शिखरे Every में। person that is joined on this morning devotion, you will enter into your Rehoboth. Receive it. और हर कोई जो Hallelujah. मॉर्निंग डिवोशन में जुड़ा है, आप अपने Yes. रहबोत में जरूर प्रवेश करेंगे यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशुआ के नाम In में, Jesus' name. यीशुआ के नाम में। Amen. Amen. And amen. आमेन। Yes, what a wonderful day today. और आज का दिन कितना सुंदर और I pray अद्भुत to है। God प्रार्थना करता हूँ that प्रभु से today will be a day of Rehoboth for कि you. आमेन, आपके लिए आज का दिन रहबोत का दिन हो। Amen. Amen. I want to tell you, sir, I've been always telling you, how many of you actually called somebody on this morning devotion? और मैं आपसे पूछना Yes. चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने मॉर्निंग डिवोशन में किसी को बुलाया है? So if you have done that, अगर आपने किया है, may you be the first one to enter into Rehoboth. तो आप पहले होंगे जो अपने रहबोत में प्रवेश When करेंगे। any man of God tells you to do something, you must do it. जब कोई परमेश्वर का जन आपको कुछ करने के लिए कहता है तो आपको करना Tell your चाहिए। friends, your family, come on the Noah app, and every morning you have a morning devotion. अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों से कहिए कि नोहा ऐप में जुड़िए, Yeah, उससे yeah. आप मॉर्निंग डिवोशन में आ सकते हैं। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित Take करे। care. ध्यान रखिए अपना। Have a great day. आपका दिन आशीर्वादित हो।